My dear students, welcome to Maths Matters. This is Priyanka Sharma, and in this video we are going to attempt exercise 6A related to simplification. We perform those operations strictly on the following order. First, division, multiplication, addition, and then subtraction. Okay, so here is the question number 1. Simplify, and this is the question. 21 minus 12 divided by 3 into 2. So first of all we have to divide this one, and here is the expression 21 minus 12 divided by 3 into 2. First we perform division. 21 12 divided by 3 is 4 into 2. Then we perform multiplication. 21 into 21 minus 4 into 2 is 8. 21 minus 8 is 13, and 13 is your answer. Now here is question number 2. 16 plus 8 divided by 4 minus 2 into 3. So first we perform division, then multiplication, and then addition. After doing all these we perform subtraction. So here is the expression. 16 plus 8 divided by 4 minus 2 into 3. 16 plus 4, 8 divided by 4. First we divide this one. 8 divided by 4 is 2, minus 2 into 3. Okay, now we have to perform multiplication. 16 plus 2 minus 2 into 3. 16 plus 2 minus 2 into 3 is equal to 6. Okay, now we perform addition. 16 plus 2 is 18 minus 6. Now we perform subtraction. So here 18 minus 6 is 12. Understand? Here is question number 3, and in this question we have to follow according to the letters of the word mass. Okay, V, B, O, D, M, A, S. Okay, V means vinculum. विंसिकुलम को आप बार भी बोल सकते हो. B means brackets. O means of. D, division. M, multiplication. A, addition. And S, subtraction. Okay, so according to this we have to solve all simplification. Here is
simplify 13 minus bracket 12 minus 6 divided by 3. So first we solve the bracket. Here in this bracket there are two sums. First one is division and second one is subtraction. So first of all you have to divide and you will get 2. 6 divided by 3 is 2, and now you have to subtract this one. 12 minus 2 is 10. Okay, now 13 minus 10 is 3. Understand? Question number 4. This is question number 4, and here are 3 types of bracket. This one is called parenthesis, the curly one is called braces, and last square bracket is called square brackets. So here are 3 types of bracket, and first here we have to remove parenthesis. Parenthesis means a curve bracket. एक जो कर्व ब्रैकेट यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस. तो ये आप पहले रिमूव करोगे, एंड 12 माइनस 2 इज 10. ओके, एंड आगे की जो भी डिजिट्स हैं वो आप वैसे ही राइट कर लोगे. तो यहाँ पर आ जाएगा 10. नाउ यू हैव टू रिमूव ब्रेसेस. ब्रेसेस is 16 minus 10. 16 minus 10 is 6. Understand? Now here is 4 plus 6, and this is in square bracket. So now you have to add this one. 4 plus 6 is 10. Now you have to subtract, and 19 minus 10 is 9. Understand? Question number 5. 36 minus 18 माइनस, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है, माइनस ब्रेसेस 14 माइनस पैरेंथेसिस 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2. So here first we have to solve parenthesis division. यहाँ पर आपको सबसे पहले parenthesis में जो division दिया हुआ है उसे solve करना है. ओके, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं 14 डिवाइडेड बाई 2. ओके, सॉरी 4 डिवाइडेड बाई 2. तो ये 4 को 2 से डिवाइड करने पे आएगा 2. वो आप यहाँ पर ऐसे ही राइट कर दोगे. बाकी के सारे डिजिट्स आप वैसे ही राइट करोगे इंटू 2. उसके बाद नेक्स्ट इस ब्रैकेट के अंदर ही, पैरेंथेसिस के अंदर ही जो भी सोल्यूशन बचा है उसे हम सॉल्व कर लेंगे. 15 माइनस 4 इज 11. ओके, तो रिमूविंग पैरेंथेसिस, यहाँ पर हमारा पैरेंथेसिस रिमूव हो चुका है. नाउ we have to remove braces. We have to remove braces, and 14 minus 11 is 3. Okay, now we have to remove square bracket, and here we will remove square bracket. 18 minus 3 is 15. In the end we subtract the numbers. 36 minus 15 is 21. अंडरस्टैंड? सबसे पहले इसमें आपको करना है डिवीज़न, और वो डिवीज़न हमारा दिया हुआ है पैरेंथेसिस के अंदर. तो आपने इसे डिवीज़न कर लिया, इसका डिवाइड कर लिया, उसके बाद आपका आ गया 2. उसके बाद बाकी के नंबर्स को आप एज इट इज़ राइट कर लोगे. नाउ डिवीज़न हो जाने के बाद जो हमारा पैरेंथेसिस है उसी के अंदर हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, एंड एंड में आप उसी के अंदर सॉल्व कर लोगे. सबसे पहले ये हमारा
सब्सट्रैक्ट कर लोगे और उसके बाद आपका ये सॉल्व हो जाएगा तो ये आ जाएगा 11। अब हमारा ये ब्रैकेट पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। इसके बाद हम ब्रेसेस को रिमूव करेंगे। 14 माइनस 11 तो आएगा 3 और उसके बाद लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। जब पूरा सॉल्यूशन यहाँ तक पूरे ब्रैकेट सारे ब्रैकेट्स रिमूव हो जाते हैं देन हम करते हैं सब्सट्रैक्ट या एडिशन, जो भी आपको यहाँ से दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग। अंडरस्टैंड? तो here is the answer is 21. Question number 6 is 27 minus 18 minus braces 16 minus parenthesis 5 minus 4 minus 1. ओके, यहाँ पर सारे ब्रैकेट्स आपके क्लोज हो गए हैं। हेयर इज विंसिकुलम एज वेल, यहाँ पर आपको बार भी दिया हुआ है, बार को हम लोग विंसिकुलम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले बार को हटाना होगा। तो हेयर सारे नंबर्स को जैसे ही ब्रैकेट्स में दिया हुआ है उसी तरह से आप राइट कर लो। जिन नंबर्स के ऊपर यहाँ पर बार लगा होता है उसे हम पहले सॉल्व करते हैं। तो 4 माइनस 1 इज़ 3। नाउ अब इतना सॉल्व हो जाने के बाद अब हम हटाएंगे पैरेंथेसिस। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा कर्व ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी नंबर्स हैं उसको सब्सट्रैक्ट करना है हमें, उसे हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा जो पैरेंथेसिस है या फिर हमारा कर्व ब्रैकेट है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद सारे नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो हमारा ब्रेस दिया हुआ है उसके अंदर वाला सॉल्यूशन, ब्रेस दिया हुआ है 16 माइनस 2। ओके, 16 माइनस 2 इज़ 14। इन द लास्ट ऑफ द ब्रैकेट, लास्ट का जो ब्रैकेट है उसमें आपको अब हटाना होगा स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट को हटाएंगे तो आएगा 18 माइनस 14 इज़ 4 एंड लास्ट में आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा 4 को 27 से, तो आपका आंसर होगा 23। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग है। दिस क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस सिंप्लीफिकेशन, दिस इज इन fraction. This simplification is given in fraction form. So यहाँ पर आप देखिए given expression में 4 whole 4/5 divided by 3/5 of 5 plus 4/5 into 3/10 minus 1/5. So first of all removing off, और ऑफ को जब हम रिमूव करते हैं तो हम लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं है तो उसके नीचे हम 1 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 whole 4/5 प्लस डिवाइडेड बाई 3/5 इंटू 5/1 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। हेयर जब हम इसको इम्प्रॉपर करेंगे तो आएगा 24/5 डिवाइडेड बाई 3/1। कैसे हुआ ये 3/1? क्योंकि जो ऑफ वाला प्रोसेस था ये, इसे हमने किया है सॉल्व। 5 के नीचे जो 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ पर जो 5 है ये वाला 5 और ये वाला 5 कट जाएगा और 1 टाइम में ये आ जाएगा, तो इसीलिए ये हो गया 3/1। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3/1। उसके बाद प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। 24/5 इंटू 1/3। जब भी हम डिवीज़न करते हैं तो हम डिजिट को यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद हम नंबर्स को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने कर लिया रेसिप्रोकल, और एक सेकेंड, ओके, अब आपने यहाँ पर रेसिप्रोकल कर लिया है। उसके बाद आप 3 के टेबल से, ये 3 है, 3 के टेबल से आप कट कर दोगे 24 को तो आ जाएगा 8।
ठीक है, यहाँ पर 8 हो गया और ये हो गया अब हमारा 8/5 आपने यहाँ पर राइट किया। देन 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। अब 8, अब हमें करना है फिर से मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का, और इसे आपने सॉल्व किया तो आया 6/25। और ये कैसे आया वो देखिए, बिकॉज ये जो 4 है इसको हम कट कर लेंगे 2 के टेबल से, एंड 10 भी कट हो जाएगा 2 से, तो ये आएगा इस तरह से आपका आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 5 यहाँ पर 25 आ जाएगा, और 3 × 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। ओके, तो अब मैं कर देती हूँ इसे इरेज, जो लाइंस मैंने की हैं। तो ये हो जाएगा 6/25। ओके, अब आपको करना है ऐड करने के लिए आपको लेना होगा एलसीएम। यहाँ पर 5, 25 एंड 5 का एलसीएम हो जाता है 25, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 40 + 6 - 5 आएगा। पहले दोनों नंबर्स को हम कर लेंगे ऐड। 40 + 6 को ऐड करते हैं तो होता है 46, एंड उसमें अगर हम 5 माइनस करते हैं तो होता है 41। 41/25। इसको जब हम मिक्स में लिखेंगे तो आंसर होगा 1 होल 16/25। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, एंड दिस इज ऑल्सो इन फ्रैक्शन। सो here is here is 2/3 plus 4/9 is in a curved bracket of 3/5 divided by 1 whole 2/3 into 1 whole 1/4 minus 1/3. First we solve this one. We remove parenthesis और इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इनका हम लेंगे 9। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे उसी प्रोसेस में जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 एलसीएम लिया है, इसलिए 3 के टेबल में 3 टाइम्स में 9 आता है, तो 2 से 3 का मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा, और 4/9 वैसे ही रहेगा। अब ऑफ को हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ऑफ रिमूव करने के लिए बाकी सारे नंबर्स को हम वैसे ही राइट करते जाते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप इस सॉल्यूशन को करते जाते हैं। तो आपने पहले पैरेंथेसिस को रिमूव किया है, उसके बाद यहाँ पर आपने ऑफ को रिमूव किया है। ऑफ को रिमूव करने के लिए आपने यहाँ पर लगा लिया है मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब आप इसको कैसे करोगे, 5 के टेबल से 10 को जब आप डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, और 3 के टेबल से 9 को जब आप डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 2/3। आगे के जो सारे आपको मिक्स में दे रखे हैं फ्रैक्शन, उनको आप कर लोगे इम्प्रॉपर, तो ये हो जाएगा 3 होल 2/3, ये आपका कन्वर्ट होके हो जाएगा 5/3। 1 होल 1/4 ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे ऐसे ही राइट कर लेंगे, या तो फिर आप चाहो तो इसे अभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तभी हम इसको इम्प्रॉपर करेंगे। तो यहाँ पर अब डिवाइड है, डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं पीछे वाले नंबर्स का रेसिप्रोकल और लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन। ओके, तो 2/3 इंटू 5 3/5 हो जाएगा, और अब हम इसे 3 को 3 से कट कर देंगे तो 2/5 आ जाएगा। 1 होल 1/4 को जब आपने इम्प्रॉपर किया तो ये आया 5/4, और यहाँ पर हो गया 2/5 इंटू 5/4। 5 से 5 को कट कर देंगे, 2 1 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 4 है तो 2 2 4 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आएगा 1/2। अब ये है आपका 1/3, ठीक है। अब हम करेंगे इसे सब्सट्रैक्ट, दोनों का ही एलसीएम होगा 6, और अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 के टेबल में 2 टाइम्स में 6 आता है, तो इससे 2 का मल्टीप्लाई और इससे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 - 2, आंसर इज़ 1/6। ओके,
क्वेश्चन नंबर 9, 7 whole 1/3 divided by 2/3 of 2 whole 1/5 plus 1 whole 3/8 divided by 2 whole 3/4 minus 1 whole 1/2। तो यहाँ पर गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम रिमूव करेंगे ऑफ, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, फिर से हम डिवाइड करेंगे और लास्ट में हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई के लिए आपको वही मेथड सॉल्व करना होता है, पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन, उससे भी पहले आपको डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो यहाँ पर 7 whole 1/3 को आप इम्प्रॉपर कर लोगे तो आ जाएगा 22/3। 2/3 आप ऐसे यहाँ पर राइट कर दोगे डिवाइड का साइन लगा के। ऑफ को भी आप इम्प्रॉपर कर लोगे तो हो जाएगा 2 whole 1/5 को आप इम्प्रॉपर कर रहे हो तो आ रहा है 11/5। 1 whole 3/8 को इम्प्रॉपर कर रहे हो तो आ रहा है 11/8। 2 whole 3/4 को इम्प्रॉपर करोगे तो 11/4 आ जाएगा, माइनस 1 whole 1/2 को इम्प्रॉपर करोगे तो 3/2 हो जाएगा। सबसे पहले इम्प्रॉपर करने से हमें सॉल्यूशन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इम्प्रॉपर करने के बाद अब हम पहला स्टेप क्या करेंगे, अब हम करेंगे ऑफ को करने के लिए ऑफ को हटाकर यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन लगा देना होता है। और फिर अगर ये दोनों नंबर डिविजिबल है कैसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, अदरवाइज न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिविजिबल है किसी भी तरह से, तो हम उसे करते हैं डिवाइड। और अगर ये डिविजिबल नहीं होते तो हम सामने वाले नंबर्स का कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 11 × 2 करेंगे 22 आ जाएगा, 3 × 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये नंबर्स एक दूसरे से किसी से भी कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये आया है 22/15। अब 22/3 डिवाइडेड बाई 22/15 प्लस 11/8 प्लस 11/8 यहाँ से आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर है डिवाइडेड बाई 11/4 माइनस 3/2। तो पहले हम ये वाला डिवीज़न कर लेते हैं और बाद में हम ये वाला डिवीज़न करेंगे। उसके बाद एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी होगा सिंप्लीफाइंग में उसे हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 और यहाँ पर हम साइन लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन का। 22 एंड 22 दोनों ही कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 टाइम्स में दोनों ही डिविजिबल हैं एक ही टेबल से। 3 5 जा 15 होता है तो ये भी 3 भी हमारा नहीं होगा, अब यहाँ पर 3 भी रिमूव हो जाएगा। 15 5 टाइम्स में आया तो इसलिए यहाँ पर 5 ही बचा ओनली, तो आपने 5 राइट कर लिया। अब इसके बाद अब आते हैं इस वाले, यहाँ पर इसके बाद प्लस का साइन ऐसे ही आप लगा दोगे। अब इसे भी आप कर लोगे रेसिप्रोकल तो 11/4 की जगह हो गया 4/11। यहाँ पर डिवीज़न के साइन की जगह लग गया मल्टीप्लिकेशन का साइन। 11 एक दूसरे से कट जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 8 और यहाँ पर 4 के टेबल से 8 को अगर हम करते हैं तो आता है 2। तो 4 यहाँ पे नोमिनेटर की प्लेस पे था इसलिए यहाँ पर 1 होगा एंड यहाँ पर 2 1/2 हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर ओनली 5 आया था बट यहाँ पर 1/2 क्यों आया है, तो वो आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन उसको समझना बहुत ही आसान है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर न्यूमिनेटर वाली प्लेस पे कोई ऐसा नंबर दिया होता है जहाँ पर 1 टाइम्स में वो डिविजिबल होता है और डिनोमिनेटर 2 टाइम्स में, तो हम उसे इस तरह से ही लिखेंगे 1/2। बट अगर डिनोमिनेटर की प्लेस पे कोई भी नंबर होता है जो कि 1 टाइम में होता है और उसके ऊपर वाला नंबर यानी कि जो न्यूमिनेटर की प्लेस पे है वो आपका कितने भी टाइम्स में 5 टाइम्स में 4 टाइम्स में डिविजिबल है, तो इसके नीचे हमें 1 लिखने की कोई नीड नहीं होती, बट न्यूमिनेटर की प्लेस पे होती है। ओके, तो अब ये हो जाएगा -3/2। एलसीएम ले लेंगे 2
इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अगर कोई नंबर्स नहीं होते हैं डिनोमिनेटर में और हमें सब्सट्रैक्ट या एडिशन करने होते हैं तो हम अपॉन में 1 ले लेते हैं। तो इसके नीचे आपने 1 ले लिया, 2 से किया, 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स में, तो 5 से 2 को मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाएगा, +1 -3। ओके, अब जब आप इसे करोगे ऐड तो हो जाएगा 11 और सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 8/2 आपका आंसर है। बट यहाँ पर ये अभी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो 2 4 जा 8 होता है, इसलिए आपका आंसर हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 10, इसे भी हमें उसी तरह से सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। तो देखिए कैसे करेंगे। 5 होल 1/7 माइनस 3 होल 3/10 डिविजिबल बाय 2 होल 4/5 माइनस 7/10। एंड यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है पैरेंथेसिस एंड दूसरा दिया हुआ है आपको ब्रेस। तो पहले तो हम कर लेते हैं इनको इम्प्रॉपर। तो ये हो जाएगा 5 होल 1/7 इज़ 36/7, 3 होल 3/10 इज़ 33/10, 2 होल 4/5 इज़ 14/5 एंड 7/10 वैसे ही रहेगा। पहले हम सॉल्व करेंगे पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28 - 7/10, तो ये हो जाएगा 21/10। अब हमें सॉल्व करना है ब्रेस और ब्रैकेट एक ही साथ सॉल्व हो जाएगा हमारा। ब्रेस और डिवीज़न जब आप इसे डिवीज़न में करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 10 से रिमूव हो जाएगा, 33/21। ये जो है ये आपका हो जाएगा 3 के टेबल से 11 टाइम्स में आपका आ जाएगा 33 और 7 टाइम्स में 21 आ जाएगा। तो अब ये हो गया 36/7 माइनस 11/7, 36 - 11 करेंगे तो आ जाएगा 25/7। और जब आप इसे मिक्स्ड में लिखोगे तो ये आएगा 3 होल 4/7। क्वेश्चन नंबर 11, इसे भी वैसे ही करना है, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले हम रिमूव करेंगे पैरेंथेसिस, उसके बाद ब्रेस एंड लास्ट में हम करेंगे डिवाइड। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये वाला स्टेप करना है सॉल्व, ठीक है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर पहले आपको सारे नंबर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इन इम्प्रॉपर। ओके, तो यहाँ पर है 9 होल 3/4। जब इसे आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा एक सेकेंड जूम कर देती हूँ, 39/4, ठीक है। उसके बाद आप इसे करोगे 2 होल 1/6, 13/6 हो जाएगा, 4 होल 1/3, 13/3 हो जाएगा, 1 होल 1/2, 3/2 एंड 1 होल 3/4 इज़ 7/4। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें सॉल्व करना है दिस प्रोसेस एंड ये है पैरेंथेसिस, और इसे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ले लेंगे हम 4, ठीक है। उसके बाद जब हम इसे करेंगे तो 4 यहाँ पर क्योंकि 2 के टेबल में 2 टाइम्स में 4 आता है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 7 वैसे ही आ जाएगा। 6 + 7 को ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। नाउ हेयर वी हैव टू रिमूव ब्रेस को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे सब्सट्रैक्ट करना होगा। एलसीएम ले लेंगे हम 12, ठीक है। 3 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में 12 एंड 4 के टेबल्स में आता है 3 टाइम्स में, तो 52 - 39 यहाँ पर आ गया आपका 13/12। अब इन दोनों को आप कर लोगे क्या, इन दोनों को ऐड कर लोगे। एलसीएम यहाँ पर 12 ही रहेगा और 13 में 2 टाइम्स में करोगे तो 26 आ जाएगा और यहाँ पर 13 ऐसे ही रहेगा, दोनों को ही ऐड कर लोगे, ठीक है। तो आ जाएगा 39/12। अब क्या करना है, अब रिमूव, स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका होगा 39/4 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 12/39 हो जाएगा। 39 से 39 को कैंसिल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर 4 से 12 को डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 3 इज़ योर आंसर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 4 होल 1/10 माइनस 2 होल 1/2। ये सारे नंबर्स हैं
इनको पहले हम इम्प्रॉपर कर लेंगे तो आ जाएगा 41/10 एंड यहाँ पर हो जाएगा 5/2, यहाँ पर 5/6 ही रहेगा। अब सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को रिमूव करेंगे। पैरेंथेसिस को रिमूव करने के लिए हम इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आएगा 30 से अब हम सभी को सॉल्व करेंगे। 5 के टेबल में आता है 36 टाइम्स में, तो 6 2 12 हो जाएगा। 10 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है तो 3 टाइम्स में 9 हो जाएगा। 15 के टेबल में 2 टाइम्स में होता है, इसलिए यहाँ पे 4 2 8 हो गया। अब जब आपने इनको कर लिया ऐड करने के बाद आपने सब्सट्रैक्ट भी कर लिया तो आया 13/30। अब हमें करना है रिमूव ब्रेस को। ब्रेस को रिमूव करने के लिए हमें इसको इसके अंदर ही सॉल्यूशन करना होगा। यहाँ पर है 30 एलसीएम 25, क्योंकि यहाँ पर 5 टाइम्स में आएगा 30, 6 के टेबल में तो 5 5 जो 25 और यहाँ पर 13 ऐसे ही आ जाएगा। दोनों को ही सॉल्व करेंगे 12/30, सॉरी हाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 12/30 आ जाएगा। अब लास्ट में हम लोग करेंगे रिमूव स्क्वायर ब्रैकेट को, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर फिर से हम लेंगे एलसीएम 30 और 5 को मल्टीप्लाई कर 2 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आएगा 15 टाइम्स में, तो 5 × 15 इस 75 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 12 ऐसे ही राइट कर लोगे। उसके बाद 75 में 12 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे 63/30 हो जाएगा, और ये था 41/10। फिर से हम इनको रिमूव करेंगे, कैसे, सॉरी रिमूव नहीं करेंगे, फिर से हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो एलसीएम फिर से लेंगे 30 और 30 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 10 के टेबल में होता है 33 टाइम्स में, ठीक है। तो 41 × 3 करेंगे तो 123 आपका आ जाएगा, और यहाँ पर 63 को करोगे तो आ जाएगा 63। दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे आएगा 60/30। जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 एंड 2 इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी सेम वैसे ही है। सबसे पहले सारे नंबर्स जितने भी फ्रैक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं इनको आप कर लीजिए इम्प्रॉपर। तो 1 होल 5/6 इज 11/6 प्लस 2 होल 2/3 इज 8/3, 3 होल 1/4 इज 15/4, 3 होल 4/5 इज 19/5, 9 होल 1/2 इज 19/2। अब हम रिमूव करेंगे इसे, ठीक है। जो हमारा कर्व ब्रैकेट है इसे रिमूव करेंगे। कर्व ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और ये जो पीछे वाला नंबर है इसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जब आपने किया तो 5 यहाँ पर है 19 एंड 19, तो 19 और 19 को कट कर देंगे, दोनों ही एक ही टेबल से डिविजिबल हो गए। अब उसके बाद आपका आएगा 2/5। अब क्या करना है, अब हमें ब्रेस रिमूव करना है। ब्रेस रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और 15/4 है, यहाँ पर 2/5 है। 5 के टेबल से 15 को 3 टाइम्स में डिवाइड कर देंगे एंड 2 के टेबल से 4 को 2 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 3/2। यहाँ पर है हमारा लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, इसे भी सॉल्व कर लेंगे एंड इसके लिए हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा। सब्सट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम हम ले लेंगे 6, और 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, हाँ 2 टाइम्स में, तो 8 से 2 का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 16। एंड यहाँ पर है 3 के टेबल से सॉरी 2 के टेबल में आता है 6 3 टाइम्स में, तो 3 से 3 का मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 9। ये हमारा ब्रैकेट भी रिमूव हो गया और यहाँ पे आ गया 7/6। अब हम इसे कर लेंगे ऐड, क्योंकि ये लाइक टर्म में है तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 11 + 7 18/6, और 18/6 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया हुआ है आपको 4 होल 4। सबसे पहले हम कर लेंगे सभी को इम्प्रॉपर, तो 4 होल 4/5 को इम्प्रॉपर करने पे आ जाता है 24/5 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/5, 11/5 माइनस 1/2, 1 होल 1/4 5/4 हो जाता है। यहाँ पर है आपका 1/4 माइनस 1/5। तो अब सबसे पहले हम बार को रिमूव करेंगे। बार को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ये जो बार है ये लगा हुआ है हमारा 1/4 माइनस 1/5 पे, तो एलसीएम हो जाएगा 20। एंड जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता है ना, यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड यहाँ पर 4 हो जाएगा।
फाइव में से 4 को डिवाइड करते हैं तो आएगा 1/20। ओके, क्योंकि 5 में से 4 को डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1/20। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जो हमारा कर्व ब्रैकेट है या फिर जो पैरेंथेसिस है, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमने ले लिया एलसीएम 20, और 4 के टेबल में 25 टाइम्स में आता है, इसलिए 5 × 5 करने पे यहाँ पर आएगा 25 और यहाँ पर 1 ही रहेगा। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 24/20। अब क्या करना है, अब हमें ब्रेस को रिमूव करना है। ब्रेस को रिमूव करने के लिए पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर होगा 2 के टेबल से 24 में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से 24 को, तो आ जाता है 12/20। ओके, यहाँ पर हो गया 11/5 - 12/20। अब हमें ब्रेसेस रिमूव करने होंगे, तो ये जो ब्रेसेस हैं इसे रिमूव करने के लिए आपको क्या लेना होगा, एलसीएम 20। 5 के टेबल में होता है 24 टाइम्स में, इसीलिए 11 से 4 का मल्टीप्लाई करने पर 44 आ गया है। एंड 20 के टेबल में कुछ नहीं करना है, इसलिए 12 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। 44 - 12 किया तो आ गया 12/20, सॉरी 32/20। बहुत स्मॉल लिखा हुआ था तो इसलिए मुझे नहीं दिखा। अब आपको करना है इसे डिवाइड, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन आ गया और ये हो गया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करते हैं तो ये देखिए 24 एंड 32 ये डिविजिबल है, एंड 5 एंड 20 भी डिविजिबल है। तो 5 को 4 टाइम्स में करते हैं तो 20 आता है, तो यहाँ पर तो 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो 32 है एंड 24 है, ये आपका कैसे होगा, ये आपका होगा 3 के टेबल से, नहीं 4 के टेबल से। 4 × 6 = 24। एंड इसको एक मिनट में पेन की हेल्प से करूँगी तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, जो 5 है इससे इसको आपने कट कर लिया तो यहाँ पर आ गया 5 × 4 = 20, और ये 32 ये है, ये 8 टाइम्स में हो जाता है 4 के टेबल से, और ये 6 टाइम्स में। अब ये जो 8 और 6 है ये भी अभी भी रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं 2 के टेबल से, तो 2 × 4 = 8, ठीक है। एंड 2 × 3 = 6। अब आप देखिए यही यहाँ पर आ रहा है, ये जो 4 है ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, एंड ये जो 3 है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये वाला जो 4 बच रहा था वो यहाँ पर मल्टीप्लाई के बाद लिखा हुआ है। तो ये हो गया 3/4 × 4। जब आपने 4 से 4 को कट कर दिया तो आपका 3 आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15, 7 होल 1/2। तो इसे हम कर लेंगे इम्प्रॉपर, तो 15/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर है 2 होल 1/4, ये आपने इम्प्रॉपर कर लिया, 9/4 हो गया। यहाँ पर 5/4 हो जाएगा, 1/2 माइनस 3, सॉरी ब्रैकेट 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। अब आप देखिए, सबसे पहले रिमूव करेंगे बार को। बार को रिमूव करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1/6, ठीक है। 1/6 होगा। क्यों होगा 1/6? क्योंकि आप देखिए जब आप इसे करोगे तो एलसीएम आप लोगे 6, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 है, 3 के टेबल में करोगे तो 2 टाइम्स में आएगा, एंड 1, 2 - 1 तो 1/6 ही आ जाएगा, यहाँ पर वही आया है। उसके बाद आपको करना होगा जो आपका ये कर्व ब्रैकेट है इसे रिमूव करना होगा। कर्व ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए 3/2 करेंगे, तो यहाँ पर भी हम 6 एलसीएम लेंगे, ठीक है। 6 एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आ गया हमारा, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ जिससे कि आपको समझ में, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हुआ है। तो ये 9 - 1 हो गया 8/6, एंड 8/6 जो है वो 2 के टेबल से डिविजिबल है, तो 4/3, एंड ये जो 4/3 है यही यहाँ पर आपका आया है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 4/3। उसके बाद आप करोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि आप देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर 1/2 के बाद एक ब्रैकेट लगा हुआ है, कोई भी साइन नहीं है। जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो जब भी कोई साइन नहीं होता है तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 के टेबल से 4 को कट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे या कट कर लेंगे, कुछ भी बोलिए। तो 4 2 यहाँ पर 2 टाइम्स में जाएगा तो 2/3 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा रिमूव हो जाएगा। अब 5/4 माइनस 2/3, तो ये करने के बाद आप इसे लोगे एलसीएम तो आएगा 12, और 4 के टेबल में जो 12 है वो 3 टाइम्स में आता है और 3 में 4 टाइम्स में, तो 5 3 जा 15 और 2 4 जा 8, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे 7/12 आ जाएगा। उसके बाद हम इसे करेंगे डिवाइड करने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना होगा और मल्टीप्लाई का साइन लगाना होगा। तो ये हो जाएगा, तब आप इसे करोगे 4 के टेबल से 12 को कट कर लोगे, 3 टाइम्स में जाएगा। 9 से 3 का मल्टीप्लाई करने पे 27/7 आ जाएगा। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 14, 7 2 जा 14 होता है, तो 2 के टेबल्स में 7 टाइम्स में आएगा ये। तो 15 से 7 का मल्टीप्लाई करने पे 105 माइनस 54, क्योंकि 7 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, 27 2 जा 54 होगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे 51/14, मिक्स्ड में करेंगे 3 होल 9/14 आपका आंसर। ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज जो थी 6 है ये आपकी फिनिश हो चुकी है। और इसके बाद अब हम सीधे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा दिया हुआ है वो हमें